Yes. Long time no see. Exactly. Yes. Well, I mean, the mood is there for you to see. You know, it's a romantic song. It's a song of love, of companionship, of a relationship that's developing over time, that's growing with time. You know, so it was amazing, the shoot. It's always nice to shoot scenes like this. You know, it's a nice environment created by Bijoy. And of course, wonderfully written by Vinod himself. Yes, written by me. Written. I want a scroll going at the bottom TV में नीचे through लगाना. this entire interview for 24 hours. Why are most of the scenes in slow motion? Is there a planned thing? Sorry? Why are most of the scenes in slow motion? You know, because I think when you're with somebody you really love, you want time to slow down. You want to spend as much, and every moment, every second matters. So it really is one way, I guess, metaphorically, of showing you that everything is there to be remembered as a memory, every single second. And now I'll check with Bijoy and tell you whether that's true or not. अब दोनों से एक सवाल है कि एक सीन होता है जहाँ पे आदित्य रॉय मतलब परफॉर्म कर रहे हैं और सडनली आप आते हैं. शी वाज परफॉर्मिंग ऑन अ चेक बोर्ड का मतलब जो टाइल्स होती है, क्या ये पर्पसली लिखा गया था या मतलब कोइंसिडेंटली? सर इस फिल्म में जो कुछ है ना सब पर्पसली किया है, सब पर्पसफुली, उसमें कोई विदाउट पर्पस कुछ नहीं. गाना भी हमने पर्पस के साथ ही लिखा है. क्या कारण था शॉट? मतलब what was the reason to written this song? क्या मूड में था? देखिए, मैंने ऐसा हुआ कि शांतनु आया घर में और हम लोग कंपोज कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो वो गाना बनाता गया और मैं लिखता गया. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यही फाइनल लिरिक्स रहेंगे. मैं तो ऐसे भर रहा था. और ये गाने में अगर आप देखें तो बहुत अनयूजुअल है कि पहला अंतरा और सेम दूसरा अंतरा जो लड़का और लड़की गाते हैं सेम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फाइनल गाना हो जाए. लेकिन ये इतना अच्छा बन गया कि बस फाइनल हो गया. ये एक्चुअली इनके पिताजी के साथ भी हुआ था. इफ़ यू रिमेंबर, एक गाना बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो धुन थी. हाँ, that's right. वो लक्ष्मीकांत जी ने धुन सुनाई थी जावेद साहब को कि ऐसी धुन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो जावेद साहब ने कहा यार ये इतना अच्छा है कि यही बनेगा. तो ये हमारा 1 2 3 है. Oh, you saw that? That's right. सर उसके लिए 8th of January is a very very important day. वो इयरिंग किसकी है, वो खून किसका है, कौन उठाता है उसे, all this you will know when you watch it on there. But yes, thank you for noticing that. Yeah, I'm glad you noticed. I was scared के ये बिल्कुल वही, ये वही है. वो उसमें डस्टिन हॉफमैन और हमारे साथ काम कर रहे थे और ये उसी फिल्म का कौन है आप? Very beautiful. It's like what's unbelievable and beauty you can say. What have you to say about your role in fact? I don't want to tell you too much about it because it's a mystery thriller ultimately about the look. About the look. Abhi the look I'll have to put you through to my grandmother and my mother. Acha sadly. Yeah, it's a Beauty you can say. yeah, but that is the part. Just say thanks. Yeah. That is the part. It's a sort of gentle, sort of very loving. It's a relationship which is sort of seeped in love and like what I think Farhana said a lot, and I don't want to say more because it is a mystery thriller. चुप. बात इसको सर कंपटीशन में उनके साथ अब क्या कंपटीशन करूंगा यार. नहीं, ऐसी बात नहीं है. द फैक्ट इज इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन and it's nice because you know you want to challenge each other when you're working in a scene, and honestly as an actor I'm still very young, you know, and I've grown up seeing his films, seeing his work. I'm a huge admirer of him. To work with him was fantastic. बहुत खुशी की बात थी. And then of course to be like stimulated by someone, you know, when you're on set, by someone who's so good at what he does. I mean, I think it really helped me up my performance as well. So that's all I can say. फरहान, हम लोग 3 दिन से लगातार मिल रहे हैं, तो this was with the purpose like कि yeah, it was सर ये मैंने happening प्लान ही for- इसलिए किया था ताकि मैं आपको 3 दिन इन रो में ये प्लान ही ऐसे हुआ है, क्योंकि अदरवाइज यू डोंट मीट मी, यू डोंट आंसर माय कॉल्स. क्या करूँ? यार यार कमाल कर रहे हैं यार, मुंह पर बोल रहे हैं ऐसा कैसा. भैया ये lyrics Eternal जब होते हैं, थे, eternal. तो फाइनल नहीं थे, मैं बोल चुका हूँ. पर जिन लोगों ने सुना उनको इतने अच्छे लगे कि ये रहने दिए मैंने.
तो आप ऐसा लेके चलिए कि लिरिक राइटर इसका बिल्कुल बेकार लिरिक राइटर है लेकिन उसको अच्छा लगा और लोगों को अच्छा लगा तब मैं रख दिया। नहीं, और ऐसी बात नहीं है. The fact is that when you talk about love, you're going to talk about romance, you're going to talk about pining, you're going to talk about longing for each other. तो उसमें there are only that many words in all honesty that also can be used. तो context में when they fall in correctly, I think that's more important. अगर आप सिर्फ वर्ड्स को पकड़ के चलेंगे तो फिर प्यार कितना यूज हुआ है, I दिल love you. कितना यूज हुआ है, यू नो मोहब्बत कितना यूज हुआ है, इश्क कितना यूज हुआ है. तो देन व्हाट डू यू यूज? बोलना तो पड़ेगा, आपको दिल की बात तो बतानी पड़ेगी. तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज राइट. साल का पहला ही वीक रहेगा इनफैक्ट लाइक पीपल हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू ईयर एक्चुअली द फर्स्ट रिलीज होगी व्हाट वाज दैट वाज आल्सो डिसाइडेड अलीशा जी. देखिए हमने इस पिक्चर के पोस्टर पे लिख दिया है दिस न्यू ईयर मेक योर बेस्ट मूव, मगर उसका हम बोल नहीं सकते, हम थोड़े हम्बल हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि दिस इज मेक सी योर बेस्ट मूवी. अब बोलना नहीं चाहिए हमको खुद ही, पर हम सीधा बोल रहे हैं कि आप आके देख लीजिए. अभी आपने अमिताभ बच्चन के साथ फिर से काम करा, आपने एक लव है, तो जब भी बच्चन साहब आने से आपकी मूवी में तो आप कैसा फील करते हैं? मतलब डू यू फील स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट ऑफ कि हाँ मतलब बहुत अच्छे एक्टर चुनेंगे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा? देखिए बच्चन साहब हो या फरहान के साथ मैंने पहली बार काम किया, या आमिर के साथ हो, या जिसके अनिल कपूर के साथ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वो कैरेक्टर किरदार जो है वो फिल्म में बिल्कुल एकदम जम गया. और इस फिल्म में जो मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज़ है कि मैंने जब फिल्म देखी, मुझे बोला गया कि जावेद अख्तर के बेटे हैं फरहान साहब, इनका पहला एक्शन मूवी है. तो मुझे यकीन नहीं आया फरहान के इनका पहला एक्शन मूवी, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने एक्शन किया है. ऐसे गन लेके चलाते हैं कि सारी ज़िंदगी गन चलाई है. तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी कि हर कलाकार, चाहे अमिताभ बच्चन हो, फरहान अख्तर हो, अदिति हो, हर कलाकार उसको बिल्कुल, और निर्देशक इसके बिजॉय ही बना सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही लोग फिल्म को बनाएं. What's your comfort level in while doing romantic numbers? My comfort level while doing romantic numbers. You should ask me. हाँ, नहीं, I'm comfortable doing romantic numbers and romantic alphabets. You should ask me and this romantic- question. You mean with Aditi? Even on his own, like how? Yeah. अकेले में romance. There's another word for that. Sorry. we see shades of classical dancing in the song. Do we get the same like performance from the movie as well? Yeah, I don't think I can tell you too much about this. But yeah, Ruhana is established as a dancer in the film. She's a dancer, and since I've been dancing from whenever I can remember, it's been incorporated into it. See, when I was casting the film, I saw her test dancing, and I was looking for it. It took me 1 second to say Aditi Rao had it. So she's done a great job. Well, I hope so. I had a wonderful time doing action. I've directed it a lot. मतलब लक्ष्य में direct किया है, Dawn series में मैंने direct किया है. But it's a different experience when you're putting it together, and different when you're doing it. और for me it was also great just to add to it, क्योंकि जो इसके पहले जो फिल्में थी, रॉक ऑन थी, या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक थी, उसमें हमेशा मुझे बहुत पिटाई हुई है. You know, अर्जुन स्लैप मी, ऋतिक स्लैप मी, राम कपूर असॉल्ट्स मी, यू नो. तो मतलब इतनी भड़ास थी मेरे अंदर, तो मुझे अभी एक मौका मिला कि मैं लोगों को पीटूं, गोली चलाऊं, उन पे लात मारूं. मतलब आई सो एक्साइटेड. इट वाज टू मच फन. So no wonder you did so well. Yeah. All of it came out. I'm sorry I'm late. Farhan, I was looking for an opportunity to have you here and speak to you. वो अंदर separate We are करेंगे. doing interviews. So are we done? Shall we? Is everything done here? Sir, a quarter of our life is being spent in Lightbox these days. Oh, Yeah. wonderful. Yeah, so I was just thinking probably if you have a seat, we can make some better arrangement suffocation, it's too suffocating. You will see how the lights are Right, kept. right. A bit airy for the cameramen so that we can probably stay here for 5 hours, 6 hours. No, so next time we'll try and organize it differently. No. Like we'll do the screening. If you're not there, the screenings are happening from the studio of something and Vidhuji is very rich, so probably he can. या पंखा लगवा दो. पंखा लगा क्या क्या बोलिए? अच्छा बिंदु जी, I am making a cinema hall in Bandra. It'll be ready very soon. Sir, क्या है ना, सब लोग यहीं आते हैं एक्चुअली. तो यहाँ पर फैन लगा देते हैं. सर एक पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि जब ये जगह बनी थी, ये इस पर्पस के लिए नहीं बनी थी.
It was only meant for people to get down and walk inside. So now that this is seeming to emerge as some spot where many people are going to be doing तो their हम things, कोई कुछ we will इसका absolutely करेंगे। look into it. Thank you for the suggestion. देखिए कितना मासूम लग रहा है, देखिए एक मिनट रस्सी से बांध रखा है सब, देखिए ना। चलिए हो गया अभी वजीर की बात। ऐसे Yeah. बात करने को Amitabh ji and Lakshman, now you are acting with him. What is more easy, directing him or acting with him? They both have their own sets of challenges and both are equally as enjoyable. But this is a much longer discussion. But I've had a great time working with him in either capacity. Any tips that you took from acting, any notes that you exchanged as far as You know, it's not, you don't really go and speak to somebody like that. Say, give me tips, you know, or teach me. No, seriously, I don't mean this as a joke. You really don't do that, but you observe. You know, and the best learning you can get is from observing somebody, how they approach their work, and to see his enthusiasm after like 45, close to almost 50 years now. You know, working in the industry, still that excitement, still that enthusiasm, still that need to like want to better himself with every scene. You know, and that is it's amazing learning. You know, we are all very young, and we feel that hopefully we'll feel the same way. You know, when we arrive, if we arrive at that place that he is at today. what is the kind of action that you personally You know, this film, he rehearsed for 8 days. How many days? 8 days. 8 days we rehearsed this film before shooting. And we actually rehearsed in his house. He fed us all. We sat there and there. Now, this you don't find in a person who has done so much for so many years. So it's exceptional. Absolutely. Farhan, what is the kind of action that you enjoy doing? Is that the James Bond kind of action or the more Rohit Shetty kind of action that suits you? I don't know what the difference is. I mean, the fact is that you want to just go and do the best, what's meant to be right for that film. Different films will have different kinds of action. You know, this is pitched in a very real, very hard, very gritty kind of way, which I think Bijoy is really good at, because I think that's what he enjoys as well, probably even to watch. So it feels very, very real when for us to also get to do it, and I enjoyed it tremendously. It's very hard. टेंस पर्सन थोड़ा गुस्से वाला Huh? थोड़ा गुस्से वाला है एक्चुअली कैरेक्टर में you are a little bit थोड़ा He's smiling so much. मैं गुस्से वाला हूँ नहीं, फिल्म फिल्म में. भाई गोली कोई चलाता है तो गुस्से में चलाएगा, हंसते से थोड़ी चलाता, पागल होगा। हंसते से, मैं हंसते में तुमको मार रहा हूँ यार, ऐसा है मैं मार रहा हूँ। जी. Complex character, your character looks like गुस्सा आएगा तो इधर गोली Yeah, चलाएगा। all characters are meant to be. हाँ? So let's not be shocked कि इस character में कुछ complexities हैं. हाँ, ऐसा. But when Vidushi said you look like someone who is pro with the guns, have you had some gun training before? I have told him not to say that publicly. Nowadays it's very misleading to say things like this. पहली बार उठा रहा हूँ पिस्तौल. सुन लीजिए सब लोग. उसकी करेंगे बात आज वजीर की कीजिए, वो भी बना डालेंगे हम, आपको वो भी बता देंगे। ठीक है? Amitabh ji कब दिखेंगे promotion? हाँ? He's been missing. He was in the first अमिताभ जी बहुत प्रमोशन कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो तुम? पहले तो उन्होंने ही सब शुरू किया, खेल खेल में ये कर। अब धीरे धीरे करते ना, सब लोग लेके आएंगे। तो अभी हम सिंगर्स लाए हैं, आज गाना रिलीज है जिसमें अमिताभ जी नहीं है, ये हैं, और जो सिंगर्स हैं वो आएंगे। Vidu ji, adding to We that, have the last question. एक जो जैसे गाना जो इन दोनों के बीच में, क्या हम एक ऐसा कोई गाना देख सकते हैं जो शायद फरहान और अमित सर के बीच में कोई ऐसा जरूर आप देखते जाइए ना, हर हफ्ते हम रिलीज कर रहे हैं, वो भी तो कुछ हम आपको दिखाएंगे। आज के सब बता दो। Thank you so much. Thank you. Get the singer. We'll get the जब भी मैं विनोद जी के साथ में काम करता हूँ और पिछले कई साल से करता आ रहा हूँ, तो इनकी ब्रीफ मुझे इनकी कहीं बिना भी मिल सकती है, क्योंकि इनकी जो आत्मा है, इनके सोल से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इनकी थॉट प्रोसेस, इनका पैशन, चाहे कोई भी फिल्म हो जहाँ ये सिर्फ प्रोड्यूसर भी हों, डायरेक्टर भी हों, या फिर इसमें लिरिक्स राइटर भी हैं साथ में। सो इनसे मेरा एक ताल्लुक़ इतना लंबा और आर्टिस्टिकली बहुत अच्छा रहा है। सो जब इनका गाना होता है तो वी ऑल नो कि कुछ सिंसियर काम होने वाला है, कुछ अच्छा काम होने वाला है, जहाँ पे म्यूज़िक को, लिरिक्स को और आवाज़ को प्राथमिकता दी जाएगी और बाद में फिल्म भी अच्छी बनेगी। सो ये गाना भी जब हमने गाया था तो शांतनु मोहित्रा, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, इनके साथ बहुत अच्छा हमने यादगार काम कर रखा है हर फिल्म में। ये गाना जब दिया गया तो मालूम पड़ा इनकी लिरिक्स है, और फिर हमने ये गाना गाया। सो इट्स ऑब्वियसली उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। विदु जी जरा श्रेया जी से निवेदन कीजिए ना, आगे आ जाए इस वाले आ जाओ आगे। आप गाना सुने नहीं सुना? आई थिंक इट्स सो आई मीन वी ऑल न्यू दैट इनके अंदर था ये, सामने दिख रहा है। मतलब एक और टैलेंट था। ना उन्होंने प्रूव कर दिया कि ही इज़ अ फैंटास्टिक लिरिसिस्ट, और ये इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन में काम हुआ है। और
जैसे सोनू जी ने कहा कि हम इनकी आत्मा को अब समझ चुके हैं कि इनकी जो सोच है, इनके जो पैशन फॉर गुड सिनेमा, गुड म्यूजिक, एवरीथिंग ब्यूटिफुली आर्टिस्टिक, ही वोट्स फॉर इट, ही लाइक टोटली गोज आउट फॉर दैट। तो इतना सुंदर उन्होंने ये गाना लिखा है और कंपोज किया शांतनु दा ने। वी एंजॉय सिंगिंग दिस वन, देयर इज सो मच ऑफ सोल एंड मेलोडी एंड रोमांस, और उतना ही सुंदर पिक्चराइज किया है। सो वी देखिए, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि दीज टू आर टू ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है और ये बोलने में मेरे को ज़रा भी झिझक नहीं। थैंक यू। तो जब बेस्ट लोग अगर आपके साथ काम करना चाहें तो आप क्यों ना बोलें। और बहुत मैं खुश हूँ मतलब इन दोनों के साथ बड़ा लंबा मेरा रिश्ता है, परिणीता में किया, बहुत फिल्मों में किया, लेकिन बहुत एक मन से सोनू को एक बार हमने 6 बार गवा दिया, 8 बार गवा दिया, तो दुखी हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा पूरा अंधेरा कर दिया, तो अंधेरा कर दिया, अंधेरे में इन्होंने गाना गाया। जब वो हमने लाइट ऑन की तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्यों मुझे समझ में आ गए। श्रेया हमारे पास, संजय बंसाली हमारे असिस्टेंट थे, ये उनके पास गई, हम सिंगर ढूंढ रहे थे, तो संजय को हमने जोर से फ़ोन लगा के बोला यार क्या तू कर रहा है, कोई कहता सर मैं भेज रहा हूँ, तो उन्होंने और ये आज यहाँ है। तो इनके साथ तो हमारा बहुत। एक बात कहना चाहेंगे कि गाने इसी होते हैं जो जबान पे याद हो गए, अगर गुनगुना रहे थे आसानी से याद हो गए गाने। ये बताइए, एक लंबा एसोसिएशन आप दोनों के बीच में, इससे ज़्यादा गाने भी मिलेंगे फ्यूचर में, वो गाना चाहेंगे साथ में, क्योंकि डिफरेंट हम तो गवाएंगे हम तो गवाएंगे। आई थिंक ये ऑडियंस चाहती है हमेशा कि इस कॉम्बिनेशन में गाने और आए। आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे, दैट आवर वॉइसेस हैव बीन रियली लव टुगेदर। और आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सिंगिंग विथ हिम। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ और मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ। व्हेन ही वाज इन सारेगामा एंड आई वाज अ कॉन्टेस्टेंट, so I have looked up to him as a singer, and today I get to sing with him such beautiful songs. It's just every song is a learning experience और लोग बहुत पसंद करते हैं। श्रेया में चलो श्रेया में तारीफ मैं बोलता हूँ। एक्चुअली श्रेया एक ऐसी सिंगर है जो मुझे बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि श्रेया की आवाज़ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हरकतों के अलावा एक्सप्रेशन जो आता है वो बहुत सही आता है, जो हम लोग सब इस बात के कायल भी हैं। तभी मेरे हिसाब से अगर ऑल टाइम सिंगर्स में चुना जाएगा तो बेस्ट में तो उसका शुमार होगा। तो श्रेया इन दैट सेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। थैंक यू। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना जीना नहीं, मरना नहीं, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। हमने लिखा है हमने कहा हमने गाया झंडा गाड़ थैंक यू सो मच। थैंक यू।